A very warm good evening to one and all. Thank you, Poonam Pathak ma'am, for coming for this session, coming for the podcast. It's great pleasure having you on the podcast. So today is our first episode of the podcast we are shooting. So again, a big thank you to Poonam ma'am. So, a little brief about Poonam ma'am. Poonam Pathak ma'am is a very active member of Navi Mumbai branch of WIRC. She is a partner of a firm. Her core expertise lies into direct tax as well also, and she is a working professional plus handling her family as well, and she is quite famous on social media and also a LinkedIn influencer. So, welcome, Poonam ma'am, for the session. Thank you so much, Ronak. And I must appreciate that you have started this initiative. I think this will be very helpful for the youngsters and newcomers who are coming into profession, students. This will be quite helpful for them. Thank you, ma'am. So, ma'am, we just start. So, ma'am, the first question is like, how did tell us about something about your journey from young professional to an experienced professional and now entering into the council as well, also. So Ronak, what happened like as a young professional, when I have never done job and I after clearing CA, I directly started my own practice. So when you comes into practice, into profession, there is lot of to learn because when we are students, so thoughts थोड़े different होते हैं, but when you come into profession you understand how much important is networking is. आप लोगों से जाके खुद से बात करना, इनिशिएट करना, इंट्रोड्यूस करना, बिकॉज until you are not telling them what you are doing, who you are, how you will get the work. So initially learning about that is one thing as a professional I have learned. And another thing is maintaining those contacts, because once you are making contact and maintaining them is equally important. And then the other parts of uh, profession, like balancing your home, your work, and then keep learning, because in practice you have to learn, you have to update, you have to learn communication skills also. So those are the things I have learned from a new professional to till 5 year of experience. And then coming into council has given me an opportunity to meet and interact with more people, and with meet lot of students members. So in my journey, I just try to learn and know how a person is growing, and try to learn those expertise from them. So that helped me a lot as a being in the branch. So, ma'am, you are when you started, you told me you have never done a job and you directly started on with a practice. So, what made you start practice? Because you don't have any family background of CAs as well, also very much. So, what made you ki nahi, I have to start my own practice rather than going for jobs? Because when we qualify there are like multiple peoples about jobs, then institute also has the job placements and all. So what made you start with the practice? Actually, when I started my CA, from that time I have that dream of having my own office and my own practice. Because when I was in 11th class, then one of my teacher told me कि CA बनने के बाद आपको एक साइन का ही टेल मी वन अमाउंट ऐसे पैसे मिलते हैं, एंड CA बहुत टफ कोर्स है. एंड मेरे माइंड में तो CA एंड पिक्चर ऑफ हैविंग योर ओन ऑफिस जॉब का उस टाइम में, बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड दैट, तो मेरे माइंड में से माइंड में नहीं था बीइंग 11th स्टूडेंट्स. सो स्टार्टिंग से जब मैंने सीए सोचा तो वो प्रैक्टिस सोचा, तो मे बी दैट इज द वन, क्योंकि मैं उस माइंडसेट से ही एज ए स्टूडेंट आई थी और मैंने अपनी स्टडीज भी की थी. और ड्यूरिंग द स्टडी ऑल्सो मेरा एक माइंडसेट, मतलब बैक ऑफ द माइंड एक जो पिक्चर चलती है इंसान की कि आफ्टर सीए बनने के बाद क्या होगा. सो मेरे माइंड में वही पिक्चर हमेशा आती थी कि सीए बनना है और मेरा खुद का ऑफिस होगा, क्लाइंट्स होंगे. सो दैट आई वाज विजुअलाइजिंग अ लॉट. And after becoming CA, that happened, that visualization turned into reality.
So, ma'am, how did you, matlab, what made you start ki, you have to do an expertise in this field only? Because as I mentioned earlier as well also, क्योंकि जब complete होता है, जब एग्जाम्स दे देते हैं, जब रिजल्ट आता है, तब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब किस में जाए, क्या हमने जो आर्टिकलशिप में किया था वो तो हमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अब ये फील्ड में जाए, ये फील्ड में ना जाए, तो आपने कैसे चूज किया? तो डायरेक्ट टैक्स में मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट है। एज ए स्टूडेंट मुझे डायरेक्ट टैक्स बहुत पसंद था। सो वन ऑफ द एंड कोर फील्ड भी है टैक्सेशन हमारा सीए का। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग इन डायरेक्ट टैक्स। एंड अनदर रीजन ऑफ वर्किंग इन डायरेक्ट टैक्स इज बिकॉज whatever I do, I feel like कि मैं क्या add on कर रही हूँ, what's the value I'm giving to people. So whenever today only few persons came, and when in case of taxation finance they have lot of like queries और misinformation. So मुझे वो बहुत अच्छा लगता है उनको वो एक तो गाइड करना, उनको किसी को फाइनेंशियली एक हेल्प करना, बिकॉज थ्रू अवर वर्क, थ्रू अवर टैक्सेशन एंड ऑल दोज बहुत लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। उनको पास जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है उनको प्रॉपर गाइड करना। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस। एंड अनदर थिंग, मेरा कॉर्पोरेट लॉ तो बस जस्ट बाय चांस हो गया, क्योंकि मुझे माय सिस्टर इज कंपनी सेक्रेटरी, सो बाय वर्किंग विद हर मेरा एक इंटरेस्ट उधर भी होता गया। सो एक्सपर्टीज इन कॉर्पोरेट लॉ इज बाय चांस, एंड डायरेक्ट टैक्स लॉ में मुझे इंटरेस्ट था फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, सो मैम, लाइक आपको भी काफी अटेम्प्ट्स लगे टू क्लियर योर सीए, सो हाउ डिड यू मेंटेन योर स्ट्रेंथ एंड वो पॉजिटिवनेस इन यू कि नहीं, मुझे कंप्लीट करना ही है चाहे जितना हो जाए? मेरा इसके पहले तक अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो आई यूज टू बी अ गुड स्टूडेंट। मतलब क्लास के जो हेड गर्ल होते थे, तो फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई हैव बीन लाइक दैट। और मैं अपने टीचर्स की बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स टाइम पे सब करना काइंड ऑफ थी। द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड फेलियर इज इन सीए फाइनल्स। और सीए फाइनल के फेलियर के टाइम पे ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे जब मैं फेल हो रही थी, तो जो एक स्टूडेंट को फेल हो मतलब फील होता है ना कि लाइक एवरीथिंग एंडेड, अभी तो कुछ नहीं होगा, एंड पीपल स्टार्टिंग सेइंग कि अभी तो तुमको जॉब भी नहीं मिलेगी, बिग फोर तो 3 अटेम्प्ट्स ही करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। सो एट दैट टाइम मुझे वैसा फील हुआ था उस फेज में। बट उस सेम फेज में ही मुझे लर्निंग भी बहुत मिली, एंड आपको ना एक स्ट्रेंथ आती है कि इससे ज्यादा क्या होगा। मतलब आप फेल ही तो हो जाओगे ना अगर कुछ भी नया ट्राई करते हो आपकी लाइफ में। तो क्या होता है, फेल हो जाते हो। फेल करने के बाद आप दोबारा फिर से शुरू कर सकते हो। और अभी तो आफ्टर रीडिंग मैनी बुक्स एंड ऑल पॉडकास्ट आई अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो पॉजिटिविटी वहां से एक आना शुरू हो गई थी सीए के एग्जाम्स के टाइम से। एंड गिव अप नहीं करना था, ये मेरा ये था कि ऑप्शन नहीं है गिव अप करने का, क्योंकि अगर आप गिव अप कर देते हो तो इसके बाद क्या। एंड अगर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो नेक्स्ट में हो जाओगे, ये भी क्या गारंटी है ना कि चलो हम कुछ और ट्राई करेंगे। सो व्हाट्स द गारंटी कि आप उसमें भी पास होने वाले हो। सो इट्स आई थॉट कि इट्स बेटर कि मैं मेरा सीए ही कंप्लीट करूं इंस्टीड ऑफ कि कुछ नया ट्राई करूं या एग्जाम्स नहीं दूं या गिव अप कर दूं। आई थॉट कि नहीं, ये तो मुझे कंप्लीट करना ही, अगर स्टार्ट किया था तो आई हैव टू एंड इट। सो मैम, लाइक अभी जैसा आपने बोला कि पॉजिटिविटी एंड पॉडकास्ट एंड आपने उससे बुक्स, सो विच इज योर फेवरेट बुक्स विच यू कैन रेकमेंड यंग प्रोफेशनल्स और एनीबडी टू रीड इट? मैंने काफी बुक्स रीड की हैं, अभी भी मैं रीड कर रही हूँ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड इसके रीड करने के बाद से आपका माइंडसेट ही चीजों को लेके काफी चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है। और जैसे फेलियर का था, तो आई हैव रेड समवेयर दैट देयर इज नो फेलियर, इट्स ओनली फीडबैक। ओके। राइट। तो आप अगर प्रॉपर वर्क कर रहे होते, यू हैव नॉट गिवन दैट मच एफर्ट्स, अगर आपके एफर्ट्स होते तो आपको सक्सेस मिलती थी। मे बी आपके एफर्ट्स कम है, सो द फेलियर इज अ फीडबैक कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है ना, यू कैन इम्प्रूव। बुक्स में मेरा फेवरेट तो ये है, जस्ट
द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट बुक में आता है. पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, किससे आपको अंडरस्टैंड करता है कि हाउ योर सबकॉन्शियस वर्क्स एंड ऑल. एंड इवन एक ये लाइंस आपको याद रह जाती है उस बुक्स के, जो आपकी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो. तो इसमें एक लाइन था कि एवरी ईयर अ पर्सन ना कंप्लीटली चेंज हो जाता है थ्रू द साइंटिफिक, इससे न्यूरॉन्स एंड ऑल चेंज. तो जो पर्सन एक साल पहले मैं थी, आज मैं सेम नहीं हूँ. तो जो गलतियां की थी, जो फेलियर थी, वो उस एक साल पुराने पूनम की थी. दीज आर नॉट माइंड राइट नाउ. राइट. सो अपार्ट फ्रॉम जॉब, आप और क्या करते हैं लाइफ में, एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट? मेरा जो लाइक मेन इंटरेस्ट है दैट इज लर्निंग एंड ग्रोइंग. एंड मुझे जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लर्न, टू ग्रो, टू लर्न न्यू थिंग्स, आई जस्ट कीप लर्निंग. तो वो मेरा एक इंटरेस्ट एरिया भी है. एंड बिकॉज मेरे स्कूल टाइम से ना, आई वाज लाइक दैट हेड गर्ल पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द इवेंट्स. जो भी हमारे स्कूल्स की एक्टिविटी होती थी, आई वाज एक्टिव इन ऑल द एक्टिविटीज. सो मे बी दैट पर्सनैलिटीज आई एम कैरिंग ऑन. एंड स्टिल मैं अदर एक्टिविटीज में एक पार्टिसिपेट करते रहना बहुत आता है. तो जैसे एक मेरा इंटरेस्ट है लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना. सो आई मोस्टली सेमिनार्स और इवेंट्स अटेंड करती हूँ इंस्टीट्यूट की भी. सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना लोगों के साथ में. अनदर इज लर्निंग. तो मैं रीडिंग करती रहती हूँ न्यू न्यू बुक्स. मतलब लाइक वन बुक एवरी टाइम मेरी चल रही होती है. सो आई एम रीडिंग पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. इट मे एंड इन 1 वीक और इट मे एंड इन 1 मंथ ऑल्सो, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन का हमारा टाइम कितना दे पा रहे हैं और कितना टाइम है. अगर ट्रेवलिंग है तो जल्दी फिनिश हो जाएगी वो बुक, क्योंकि टाइम मिलता है ट्रेवलिंग में रीड करने का. एंड one advice I got from somewhere, I don't remember from where, कि carry one book always in your bag. So अगर आप इंस्टीट्यूट विजिट कर रहे हैं या फिर मतलब एनीवेयर जहाँ पर आपको ना टाइम मिलेगा, वेटिंग पीरियड होगा, लाइक आप डिपार्टमेंट विजिट कर रहे हैं, सो वहाँ पर जो वेटिंग पीरियड होगा, यू यूज दैट टाइम इन रीडिंग बुक इंस्टीड ऑफ कि अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है, ऐसे कैसे हो गया है ना. वेटिंग में आप परेशान होने की जगह यू रीड योर बुक. वो जितना भी टाइम वहां पर जाएगा, यू आर यूजिंग दैट टाइम ऑल्सो. एंड उस टाइम में आप पैनिक भी नहीं हो रहे हो कि अरे इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया वाला थिंग. ट्रैवलिंग के टाइम में आप वो अपने बुक को रीड कर सकते हो. सो दैट आई एम फॉलोइंग स्टिल वन दिस एडवाइस. एंड वन एडवाइस आई गॉट फ्रॉम Silpriya मैम इन वन ऑफ हर सेमिनार, दैट कैरी योर विजिटिंग कार्ड ऑलवेज इन योर बैग. क्योंकि वो इम्प्रेशन कि अरे मैं विजिटिंग कार्ड भूल गया वाला इज नॉट गुड on someone else. So that's why I carry visiting cards in all my bags. If I'm changing my bag तो मेरा visiting card तो होगा. So I have 4-5 bags. वो सब में मेरा visiting card का एक box है. So these are the advices जो आपके मतलब ना एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं, आपके लर्निंग का पार्ट बन जाते हैं. बट वो तब होता है जब आप ना सुनते रहते हो लोगों से. तो मैं इंस्टीट्यूट के जब कोविड टाइम था या फिर आई वॉज रेजिंग माई डॉटर एट होम, आई यूज टू लिसन ऑल द वेबिनार्स, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं. स्टिल इफ आई गॉट टाइम में ICI TV से जो भी मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, आई लिसन. ओके. सो मैम, अब जैसे आपने नेटवर्किंग का बोला, सो हाउ डू यू फील नेटवर्किंग इम्पैक्ट्स द पर्सनालिटी? लाइक नेटवर्किंग से आपको कुछ पर्सनली काफी, प्रोफेशनली काफी फायदा हुआ है क्या? बिकॉज इट इज लाइक कि हम मिलते हैं उनसे, लाइक इन ICI के इवेंट्स बोल दो या कोई भी इवेंट्स बोल दो, वी मीट. बट देन एज अ प्रोफेशनल, लाइक व्हेन आई एम डूइंग अ जॉब, तब मुझे क्या फायदा उसका और हो सकता है नेटवर्किंग के रिलेशन में? So one thing is that today we are doing this podcast because we met somewhere in one event. So that's why we interacted and we are doing this together. Another thing, I have like I met with my friend who became friends now from all the areas, not only from CAs. I have friends from fitness area, from one is event into events, one is in media. So what happens, one is nutritionist. So what happens, you have that different kind of conversation. When I'm interacting a CA, I might be having the same conversation ki
टैक्सेशन में ये हो गया, ये मे बी कंप्लेनिंग बहुत बार हो जाता है, वी सिट टुगेदर एंड पोर्टल नहीं चल रहा, ये तो चेंजेस इतने होते हैं, हम कितना करेंगे एंड ऑल. बट when you have friends from other areas also, your conversation are totally different. When I'm sitting with my friends from fitness, we are talking about कि यार कितना कैलोरीज ले रहे हो, खाना कितना खा रहे हो, डाइट कैसे चल रही है ना, रनिंग कितना कर रहे हो. So your conversations are different. I'm today I was sitting with my friend from media, so she was telling me कि आप मीडिया में पूनम क्या क्या कर सकते हो, what can be done in branding front, because she was working with one of the newspaper. As one of my friend is into events, so she told me a lot of about the events which helped me while I was into committee in conducting seminars, webinars, that helped me because she told me कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो एंड ऑल. व्हेन एंड आपके जो फ्रेंड्स करते हैं ना और कंसल्टेंट करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स हो जाते हैं. सो ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप अदर एरियाज के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि तुमने अगर जो मेरी लाइफ में ग्रोथ की है कमिंग फ्रॉम माई स्मॉल होम टाउन, मतलब लाइक जो स्मॉल मेरा होम टाउन था भरथना यूपी का, एंड यहाँ आके मुंबई में जो मैंने अडेप्ट की चीजें मुझे वो लोगों से ही सीखने को मिली. ओके. एंड जो दूसरा चीज होता है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू में यू कैन मेक फ्रेंड्स. जॉब का मैं शायद उतना नहीं, जॉब में शायद रेफरल्स होता होगा बिकॉज दैट आई हैव नॉट डन, तो मैं प्रैक्टिकली नहीं बता सकती हूँ. बट जॉब में ऐसा होता है कि फ्रेंड्स है तो रेफरल्स में हेल्प मिलता है जॉब का. एंड प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे भी फ्रेंडशिप और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज यू कैन हेल्प ईच अदर आपके वर्क को लेके भी. इन जनवरी आई हैव अ कैजुअलिटी एट होम एंड आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु वर ऑल्सो सीए कि if you need anything at home and at office also, we can come and sit at your office. आप अगर आप 10 days के लिए मैं बाहर हूँ मेरे ऑफिस से, दे आर ऑफरिंग मी कि वो आके मेरे ऑफिस में भी बैठ सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशंस यू मेंटेन विद पीपल. सो आपको ऑफिस का क्या होगा, यू आर नीड नॉट टू वरी. एंड देन अनदर थिंग कि शेयरिंग ऑफ वर्क होता है बिकॉज मे बी आई एम नॉट वर्किंग इन एवरी एरिया. Okay. So if I'm not doing society, I'm not doing trust, then in that case I can refer that to my friend जो कि ये areas में work कर रहा है. There are lot of areas. Few friends are doing registrations work like the trade license, Right. then trademarks, copyrights, website making. I'm not doing that. So what I can do, I can refer them. Similarly, if they are not doing that work, they can refer me. Right. So in that case, in that refers, you are monetary getting somewhere, or you on referral basis you can refer कि आप एक दूसरे को रेफर कर रहे हो. सो वो मिलता है, मतलब आपका डायरेक्टली मे बी उस टाइम पे आउटपुट नहीं हो, बट कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली दैट वर्क्स. Okay. So, ma'am, a last question. Any young advice to the young professionals, any advice which you would like to give them? Young professional, one thing is first you need to find out your passion कि आपका exactly what you want to do in your life. Start with why. क्यों करना है आपको कुछ भी करना है. So like you are doing podcast, so what's the reason, what is attracting you towards that, finding that is one important thing. And after that आपको एक बार आपका पैशन पता है, आपका बाई पता है, तो आपको जो टाइम लग रहा है उसको ग्रो करने के लिए, उसमें सक्सेस के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, यू हैव दैट पेशेंस कि नहीं मुझे करना है, वो टाइम उसमें देना है. क्योंकि समटाइम्स बहुत कम टाइम में भी ग्रो हो जाता है, समटाइम्स इट टेक्स टाइम. बिकॉज मेरे जितने फ्रेंड्स अभी ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर का जो मीट हुआ था, दे मेट, सो उसका जो कंटेंट है दैट स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल इन फ्यू मंथ्स, कुछ को 4-5 years भी लगे to start their content performing well. So उस टाइम के लिए you have to wait.
आप 1 year और 2 years में ऐसे नहीं कर सकते हो कि ये सोचा था हो जाएगा, बट नाउ इट इज नॉट वर्किंग आउट. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम one member and she was like कि I have done few podcast and all, but अभी इतना सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं या इतना वर्क नहीं कर रहा है. सो आई टोल्ड हर कि एक बार आपने डिसाइड किया कि आपको करना है तो जितना टाइम उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, गिव दैट टाइम. तो वो Right. पेशेंस आपको एक उसमें रखना पड़ेगा. एंड सेकंड थिंग, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर, क्योंकि हर किसी की जर्नी, एज आई हैव रिटन आल्सो दैट ऑन लिंक्डइन, इज डिफरेंट. लाइक मुझे अटेम्प्ट्स लगे, तो जब अटेम्प्ट्स लग रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में आगे क्या आने वाला है या मेरी लाइफ में आगे क्या चीजें आने वाली हैं. तो जब उस वो टाइम के फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था कि वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, काइंड ऑफ थॉट्स आ रहे थे. बट अगर आज मैं देखूं तो ऐसा कुछ नहीं है. मे बी उस टाइम पे वो अच्छा कर रहे थे, आगे वो नहीं कर पाए, मेरी लाइफ बेटर हो गई, आई गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज. या आने वाले टाइम में हर किसी की जर्नी एक, मतलब ऐसे मुझे फील हुआ कि डिफरेंट होती है. Right, exactly. आपको कंपेयर नहीं करना है कि उस पर्सन का ये हो गया तो उस कंपैरिजन से आप आपकी लाइफ को ही जज करते रहो. ऐसा बहुत बार होता है. Right, right, मैं क्योंकि बात करती रहती हूँ बहुत से यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट से, तो ज्यादातर का ना प्रॉब्लम वही होता है कि अरे मेरा नहीं हो रहा, मेरे फ्रेंड्स का हो गया है. तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि हर किसी की जर्नी है. आप ये देखो कि आपने अपनी लाइफ में जो सोचा था वो आपको मिला कि नहीं, राइट. दूसरे को मिल गया नहीं मिल गया, उसमें फिर इतना ज्यादा कंपेयर करके दुखी नहीं होते रहना है. right. So, ma'am, thanks a lot. It was quite an insightful podcast. Especially, I liked one of the points majorly was, take failure as a feedback, जो आपने book का quote किया था. So, a great podcast, and it was a very insightful evening today. So, thank you, ma'am, for the session. Thank you so much, Ronak. Thank you. Thank you.